हेलो एंड वेलकम। आज यूजीसी नेट पेपर 1 जनरल पेपर का यूनिट 8 आईसीटी के यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले फ्रॉम 2023 टू 2025। और आज स्पेसिफिकली मैनेजमेंट की एग्जाम में पूछे गए पेपर 1 के यूनिट 8 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट विद जून 2025 क्वेश्चन पेपर। So starting from question number 18, arrange the evolution of following social media platform in chronological order from past to present. TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, and YouTube. So Facebook was introduced in the year 2004. Then YouTube in the year 2005. Then Twitter 2006. Then Instagram 2010. And finally TikTok in the year 2016. So Facebook C, YouTube E, Twitter B, Instagram D, and TikTok A. CEBDA, CEBDA. Option 4 is correct answer. Chronological order: Facebook, YouTube, Twitter, Insta, and TikTok is correct answer. Next, question number 38. Choose the wrong statement. Kali Linux is a flavor of Linux OS. Correct. We can use Macintosh on Linux operating system also. No, Macintosh is Mac operating system provided by Apple. So option B, that statement B is wrong. Windows Surface is developed by Intel. No, it is developed by Microsoft. So statement C is also wrong. Android is based on Linux OS. Correct. So B and C. Option 4 is correct answer. B and C statements are wrong statement. Next, question number 39. Choose the wrong statement again. OLED stands for Organic Light Emitting Diodes. Correct. Fastex is an example of RFID. Correct. CAD stands for Computer Algorithm of Design. No, computer. It is aided. Computer aided design. So C is wrong statement. RFID stands for Rapid Frequency Identification. No, it is Radio Frequency Identification. So D is also wrong statement. So B, C and D are wrong statement. Option 1 is correct answer. We have to identify wrong statement. So C and D are wrong statement. Next, question number 40. List 1, list 2 are given. Type of resources and descriptions: e-journal, e-book, e-zines, and CD-ROMs. Here e-zines means e-magazines, and CD-ROM. CD-ROM is used for storing larger volume of data. So D1. Then published on the web as well as in digital format. So e-magazine is published on website and it is also available in digital format. So C2. Then a piece of software, it is ebook. So B3. And eJournal can be used to store article on a file server in the form of magazine. So 4321 is correct sequence and correct answer is option 3. 43221. Here we have completed June 2025 question paper. Let's start January 2025 question paper. Question number 31. www full form World Wide Web. Option 2 is correct answer. So simple, no?
Next, question number 32. Which of the following is an example of non-impact printer? ये चारों में से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन और लेजर. करेक्ट आंसर इज लेजर. लेजर लेजर प्रिंटर is used. uh, Laser printer uses toner instead of ink. So option 4 is correct answer. It is a non-impact printer. Next, arrange the steps of data processing cycle in correct sequence. Data processing किस तरह से होता है? फर्स्ट स्टेप होता है इनपुट, लास्ट स्टेप होता है आउटपुट. तो ए डैश डैश देन बी. तो इनपुट, पहले इनपुट, फिर प्रोसेसिंग होगा सी, फिर स्टोरेज D and then output B. A, C, D, B is correct sequence. So correct answer is option 2. Input, processing, storage and output. Then next, question number 34. Which of the following are correct in the context of network security? Virus, worms and Trojan horse are example of malware. Correct. Trojan horse is a non-self-replicating malicious software. It is also correct. After receiving payment, if the product is not delivered, it is an example of phishing. No, it is an example of online fraud, because phishing का meaning क्या होता है? Phishing means stealing confidential data. So it is an example of online fraud and not phishing. And D, in HTTPS, S stands for secure. Correct? Hypertext Transfer Protocol secure. So D is also correct. A, B, D, all three are correct statements. So option 4 is correct answer. Next, question number 35. Match the list 1 and 2. Network device and list 2 में functions दिया है. Bridge, router, gateway and Ethernet. Device that can receive the data, analyze it and transmit it to the other network. ये होगा router. तो B1. Set of rules that decides how computer and other device connect each other through a cable in a LAN. तो ये होगा Ethernet. तो ये 2 होगा. Serves as an entry and exit point of a network is gateway, and device that connects one LAN to another LAN that uses the same protocol. तो ये bridge bridge है. 4132 is correct sequence. 4132. So option 3 is correct answer. Here we have completed January 2025 question paper. Let's start September 2024 question paper. Question number 31. A security system used a camera to capture image of each person entering a gift shop. Each image taken requires 1 MB of storage. Each image requires 1 MB of storage. मतलब 1 photo equals to 1 MB. If the camera captures image every 5 seconds, 1 photo every 5 सेकेंड में कैप्चर करता है ओवर 24 आवर्स ऑफ पीरियड. 24 आवर्स में. हाउ मच स्टोरेज इज रिक्वायर्ड? तो अगर एक फोटो 1 MB का है और एक फोटो हर 5 मिनट में क्लिक होता है, तो हम पहले सेकेंड से मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं कि अगर 5 सेकेंड में एक फोटो क्लिक करते हैं तो 1 मिनट में कितना फोटो होगा. तो 60 सेकेंड्स पर मिनट है, इसमें 5 seconds per photo. 60 divided by 5, 12 means
12 फोटोज पर मिनट क्लिक होता है। अगर 1 मिनट में 12 फोटो है तो एक एक घंटे में 60 मिनट्स पर आवर मीन्स 1 घंटे में कितने फोटो क्लिक करेगा, तो 12 इंटू 60 720 फोटो पर आवर होगा। और एक दिन में 24 आवर्स में कितने फोटो क्लिक करेगा, तो 720 इंटू 24 आवर्स, तो 17,280 फोटोज 24 आवर्स में पर डे क्लिक करेगा। तो कितना स्टोरेज रिक्वायर्ड है, तो 27,280 डिवाइडेड बाई 1024 MB पर GB होता है, तो 17,280 डिवाइडेड बाई 1024 MB करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा GB में। तो 16.875 GB लगेगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, 16.875 GB per day storage is required. Next, question number 32. With reference to different number system, which of the following statement is true? A, B, C, D, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा करेक्ट है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 से। तो 1101,001 बेस 2 इक्वल्स टू 109 बेस 10 होता है क्या, वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है जो इकोनॉमिक्स का है, और उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो आप रेफर कर सकते हो। ये सॉल्व करते हैं तो 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2, हर एक डिजिट को बेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में होगा उसका पोजीशन, प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। अब सबको पावर दे देते हैं। ये जो डिजिट है, फर्स्ट डिजिट फ्रॉम राइट साइड से लेफ्ट साइड हम जाएंगे, तो फर्स्ट डिजिट जो होगा उसका पावर होगा 0, फिर सेकेंड डिजिट का पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आगे बढ़ेगा। तो अब ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 2 रेज टू 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 64 प्लस 2 रेज टू 5 32 प्लस 2 रेज टू 4 इंटू 0 0 प्लस 2 रेज टू 3 8 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 0 0 प्लस 2 का पावर 1, तो मिलेगा 2 इंटू 0 0 प्लस 2 का पावर 0 है तो 1 इंटू 1 1, तो 64 प्लस 32 96 प्लस 8 104 प्लस 1 105 105 मिला, जो ऑलमोस्ट 109 का पावर 10 के साथ मैच कर रहा है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन 1। बाकी सब अगर सॉल्व करेंगे तो वो मैच नहीं करेगा। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33. In the context of Bluetooth and Wi-Fi as wireless communication technology, which of the following statements are true? तो ABCD में से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है वो आइडेंटिफाई करते हैं। ब्लूटूथ अलाउज फॉर शॉर्ट रेंज डेटा ट्रांसफर बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, whereas Wi-Fi allows electronic device to connect to the internet. करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ब्लूटूथ डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है, वाईफाई इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। ब्लूटूथ नीड्स अ डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट फॉर डेटा ट्रांसमिशन, whereas Wi-Fi does not need it. नो, ब्लूटूथ एंड वाईफाई दोनों को लाइन
साइट की जरूरत ही होती ही नहीं है, डायरेक्ट लाइन की जरूरत ही नहीं है, दोनों को जरूरत नहीं है। यहाँ पर बोला है कि ब्लूटूथ को जरूरत है, वाईफाई को जरूरत नहीं है, पर एक्चुअली दोनों जो डेटा ट्रांसमिशन और इंटरनेट का यूज करते हैं वो रेडियो वेव्स के थ्रू करते हैं। तो ब्लूटूथ एंड वाईफाई बोथ डज नॉट नीड डायरेक्ट लाइन। तो बी स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देन ब्लूटूथ लिमिट्स द नंबर ऑफ डिवाइसेस दैट कैन कनेक्ट एट on any one time, whereas Wi-Fi is open for more devices and more users. Correct? Bluetooth one to one data transfer होता है between two devices, तो इसलिए वो कनेक्शन एट अ टाइम वन डिवाइस के साथ ही होगा। पर वाईफाई में राउटर के साथ या मोबाइल फोन के हॉटस्पॉट के साथ मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन डी, ब्लूटूथ डज नॉट नीड अ डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट फॉर डेटा ट्रांसमिशन whereas वाईफाई डज नीड इट। तो जैसे हमने पॉइंट बी में डिस्कस किया, ब्लूटूथ एंड वाईफाई बोथ डज नॉट नीड इट। तो बी एंड डी बोथ आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ए एंड सी आर ट्रू स्टेटमेंट। ऑप्शन फोर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34। इन computers, which of the following statement is true? Data matrix printer is a type of non-impact printer. ये डेटा मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डेटा मैट्रिक्स जैसा कोई प्रिंटर का टाइप नहीं है, वो डॉट मैट्रिक्स करके। विच इज अ टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नहीं, ये इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप है। तो स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट। लेजर प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर प्रिंटर भी टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कवर होता है। द रिजोल्यूशन ऑफ लेजर प्रिंटर इज मेजर इन मेगाबिट्स पर सेकेंड। एमबीपीएस में मेजर होता है क्या रिजोल्यूशन? तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, क्योंकि रिजोल्यूशन डीपीआई में मेजर होता है प्रिंटर का, मीन्स डॉट्स पर इंच में मेजर होता है। और ऑप्शन फोर, डेटा मैट्रिक्स प्रिंटर आर नॉइजी, लो क्वालिटी एंड स्लो इन कंपेरिजन टू लेजर प्रिंटर। करेक्ट। ऑप्शन फोर इज करेक्ट आंसर। लेजर प्रिंटर साउंड क्रिएट नहीं करता है, पर डेटा मैट्रिक्स प्रिंटर नॉइजी भी होता है, उसकी क्वालिटी भी पुअर होती है और स्लो भी होता है। तो ऑप्शन फोर इज करेक्ट स्टेटमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, दैट इज एमएस एक्सेल, आर ट्रू? डेटा इन स्प्रेडशीट आर ऑलवेज करेक्ट? नो। ये डिपेंड करता है यूजर के ऊपर। अगर यूजर ने मिस्टेक कर दी तो जो आंसर मिलेगा, डेटा मिलेगा, वो इनकरेक्ट हो सकता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कैन नॉट ड्रॉ बार ग्राफ। करेक्ट। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बार ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकता। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट्स। यस, इट कैन ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट। उसका फॉर्मूला अप्लाई किया तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकता है। सम सेल्स इन स्प्रेडशीट कैन बी लॉक्ड टू प्रिवेंट अ यूजर चेंजिंग इट्स कंटेंट। करेक्ट। सी एंड डी बोथ आर करेक्ट। डी पॉइंट में क्या बताया कि अगर मैं क्रिएटर ऑफ द स्प्रेडशीट हूँ और मैं ये फाइल को किसी के साथ शेयर करता हूँ, तो मैं कुछ डेटा को लॉक कर सकता हूँ, ताकि सामने वाली पार्टी वो डेटा को चेंज ना कर सके। तो वो प्रिवेंट करने के लिए मैं लॉक कर सकता हूँ। तो सी एंड डी बोथ आर करेक्ट। तो ऑप्शन टू इज करेक्ट आंसर, सी एंड डी। Here we have completed 2024 question paper. Let's start March 2023 slot 2 question paper. Question number 31. A computer is used to store photograph and videos. Photograph and videos store करने के लिए कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। The average size of each photograph is 8 MB. एवरेज साइज है 8 MB फोटो का।
and the average size of each video is 400 MB. वीडियो का एवरेज साइज है 400 MB. हाउ मच मेमोरी इन गीगाबाइट इज नीडेड टू स्टोर 800 फोटोग्राफ? तो इंटू 800 करेंगे तो हमें टोटल MB मिलेगा और फिर हम MB को GB में कन्वर्ट कर देंगे. एंड 80 वीडियोस 1 KB equals to 1024 bytes. It's we already know. So 8 MB into 800 फोटो इक्वल्स टू 6400 MB का साइज होगा टोटल फाइल का. वीडियोस 400 MB into 80 क्वांटिटी तो 32,000 MB लगेगा. टोटल कितना होगा 38,400 MB. और अगर इसे हम 1024 MB पर GB डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा. तो 38,400 डिवाइडेड बाय 1024 MB तो 37.5 GB लगेगा. ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर. 3.75 GB storage is required. Question number 32. In about 1945, who among the following developed the idea of stored program computer? John von Neumann. Correct. Option 1 is correct answer. Invented store program computer. Tim Lee is the inventor of World Wide Web. Blaise Pascal is an inventor of that earlier calculator. And N.R. Narayan Murthy is a co-founder of Infosys company. So option 1 is correct answer. Question number 33. Which of the following communication system provides means of sharing and collaboration by allowing a group of people to enter, modify and contribute one or more pages of related text? Wikipedia, email, podcast और RSS feed. करेक्ट आंसर इज विकी. अगर आप विकीपीडिया की वेबसाइट पे जाओगे तो विकी में जो कंटेंट अवेलेबल है उसको एडिट करने का एक ऑप्शन आएगा जो बाद में वेरीफाई करते हैं टीम और उसके बाद ही पब्लिश कर सकते हैं. तो एनीवन कैन एडिट दैट डेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? EEPROM stands for electronically extendable programmable read-only memory. No, it is electronically erasable programmable read-only memory. So statement 1 is false statement. Statement 2. RAM is much faster to write or to read from than other types of memory, but its main drawback is it is non-volatile. Correct. Statement 1 is false and statement 2 is true. So option 4 is correct answer. And last question, question number 35. Which of the following statement about email address spoofing are true? Email address spoofing is copying an email to other staff? No. स्पूफिंग का मीनिंग क्या होता है? जनरली वो हैकिंग एंड फिशिंग के लिए यूज होता है. ईमेल एड्रेस स्पूफिंग इज यूज्ड फॉर हैकिंग. करेक्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. देन सी. ईमेल एड्रेस स्पूफिंग इज द forgery of an email header or sender information. Correct. D. Email address spoofing is sending a joke email to other staff? No. So B and C are true statement. So option 2 is correct answer. So here we have completed March 2023 question paper. Let's start June 2023 question paper. Set 1 जो मॉर्निंग स्लॉट में पूछा गया था. Question number 31. Which of the following is the benefit that businesses receive from using internet? कौन सा बेनिफिट है, एडवांटेज है जो बिजनेस को इंटरनेट यूज करने की वजह से मिलता है? Easier use of satellite radio, faster connection with suppliers,
इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसका इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं है. द एबिलिटी टू कॉल एम्प्लॉइज ऑन द रोड. सो ऑप्शन 2 इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. फास्टर कनेक्शन विद द सप्लायर्स, कम्युनिकेट कर सकते हैं डायरेक्टली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. कंसिडर द इक्वेशन L plus M equals to N, where L equals to 1,000,11 base 2 and N equals to 1,01,000 base 2. So, if L plus M equals to N, then identify what is M. What is the value of N as represented in decimal format? तो हमें आइडेंटिफाई करना है. तो पहले देखते हैं कि एल और एन का क्या आंसर आता है. तो एल इक्वल्स टू 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2. अब जो राइट हैंड साइड फर्स्ट डिजिट है उसको पावर 0 मिलेगा, फिर 1 2 3 4 and 5. So 2 raised to 5 equals to 32 into 1 32 plus 2 का पावर 4 16 into 0 0 plus 2 का पावर 3 8 into 0 0 plus 2 square 4 into 0 0. फिर 2 का पावर 1 तो 2 मिलेगा into 1 2 and 2 का पावर 0 1 into 1 1. तो टोटल होगा 32 प्लस 2 प्लस 1 तो 35 मिलेगा. L इक्वल्स टू 35. अब आइडेंटिफाई करते हैं n इक्वल्स टू कितना होगा. तो n है 101,000 बेस 2. तो 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2. अब फर्स्ट राइट हैंड साइड फर्स्ट डिजिट है उसको पावर 0, फिर 2, फिर 1 2 3 4 एंड 5. तो 2 रेज टू 5 इंटू 1 32 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0. तो 32 प्लस 8 40 मिलेगा. n इक्वल्स टू 40. If L plus M equals to N means L minus N equals to M. तो डिफरेंस क्या है दोनों का 5. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, M equals to 5. Question number 33. A web page offers a link for users to request another web page. The requested web page contains HTML code and JavaScript code. In this context, identify the correct sequence of the following statements. तो एक वेब पेज पे यूजर है जो जिसे रिक्वेस्ट आता है कि एक लिंक क्लिक करने पे दूसरा वेब पेज ओपन होगा. तो क्या करेक्ट सीक्वेंस होगा. तो स्टेप बाय स्टेप हमें आइडेंटिफाई करना है, ए बी सी डी ई को अरेंज करना है. द रिक्वेस्टेड वेब पेज इज डिस्प्लेड ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर. तो ऑप्शन ए तो लास्ट स्टेप होगा. पहले तो वो क्या करेगा, क्लिक करेगा. तो ऑप्शन बी, द यूजर clicks on the hyperlink and the web page is requested from the web server. So B will be the first step and A will be the last step. अब देखते हैं बाकी के 3 steps क्या होंगे. The requested web page content is transmitted to the client computer. C. D. The client computer processes JavaScript using web browser software. And E point, the web server locates the requested web page. तो सबसे पहले क्या होगा, यूजर क्लिक करेगा बी पॉइंट,
फिर क्या होगा, क्लिक करने पे वेब सर्वर वेब पेज को रिक्वेस्ट भेजेगा, तो पॉइंट ई। फिर क्या होगा, द रिक्वेस्टेड वेब पेज कंटेंट इज ट्रांसमिटेड टू द क्लाइंट कंप्यूटर, तो फिर सी आएगा। नेक्स्ट स्टेप होगा, द क्लाइंट कंप्यूटर प्रोसेसेस जावास्क्रिप्ट कोड यूजिंग वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर। और लास्ट स्टेप होगा, द रिक्वेस्टेड वेब पेज इज डिस्प्लेड ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर। तो BECDA option 4 is correct answer. These are the correct sequence. Next question number 34. Two statements are given. Identify the correct statement. Statement 1 and 2. Shareware is limited functioning freeware and normally expires after a week or a month. And second statement is shareware code can be modified and redistributed. तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, क्योंकि शेयरवेयर इज लिमिटेड फंक्शनिंग फ्रीवेयर। अगर वो ट्रायल सॉफ्टवेयर है तो वो ट्रायल पैक खत्म होने पे वो एक्सपायर हो जाएगा और आगे फंक्शनिंग नहीं करेगा। पर शेयर कोड कैन बी मॉडिफाइड, नो इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 इज wrong statement. Statement 1 is correct statement. So statement 1 is true, but statement 2 is false. Option 3 is correct answer. Next, question number 35. Which of the following should always be regarded as a security risk to the computer system? इसमें से security risk कौन सा है? Chat rooms, cookies, farming, virus और VoIP, voice over IP. तो correct answer is C and D. Both are security risk, farming and virus. तो C, D. Option 2 is correct answer. और ये जनरली फार्मिंग क्या होता है, आपने बहुत पहले देखा रहेगा, जैसे फेसबुक की कुछ सिमिलर नाम से दूसरी वेबसाइट होती है, जैसे उसका होम पेज सेम दिखता है, जिसमें आपको लॉगिन करने बोलेंगे तो यूजर आईडी पासवर्ड आप फेसबुक समझ के इंसर्ट करोगे, पर वो एक्चुअली दूसरी वेबसाइट निकलती है और आपका यूजर आईडी पासवर्ड उनको मिल जाता है। तो ये फार्मिंग होती है। जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है या फिर लॉगिन आईडी पासवर्ड टाइप की क्रेडेंशियल्स होते हैं वो चोरी कर लेते हैं वो। तो सी एंड डी इज करेक्ट आंसर। Here we have completed 2023 to 2025 question paper for Unit 8 ICT. Happy learning. Bye.